تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندراراجن نے کہا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ NIN کی 50ویں سالانہ قومی IAPSM گولڈن جوبلی کانفرنس تارناکہ علاقے میں منعقد کی گئی۔ گورنر نے ایک پودا ایک صحت کے موضوع پر 3 روزہ قومی کانفرنس میں شرکت کی۔ تمیلیسائی سندراراجن نے شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین بھی کی ہے۔ انہوں نے کورونا ٹیکہ ایجاد کرنے والے ہندوستانی سائنسدانوں کو سراہا ہے۔ گورنر کے ہاتھوں کورونا وبا کے دوران طبی خدمات انجام دینے والے طبی عملے کو انعامات بھی دیے گئے۔ I wore PPE and went to the hospitals and gave hope to them so that they are the saviors. And because of that, most of the doctors gained confidence. So a doctor, governor is wearing the PPE and coming to the hospital. So we have to be more courageous because we have the support of the governors. So that is the message. So whatever may be the situation, my appeal is making the people aware, because even now it's a 130 crore population and we are very happy. I am very confident that we have taken our indigenous vaccination, which was the dream of like medical students during our medical student days. We used to be longing for the vaccines to be imported from other countries, but now we are very happy and proud that we have taken our vaccination, and our vaccination has been administered in more than 150 countries, and we have exported our vaccination. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے انتخابات سے زیادہ اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا ہے۔ NHRD کے زیر اہتمام HICC میں منعقد پروگرام ڈیکوڈ دا فیوچر سے KTR نے خطاب کیا۔ انہوں نے انتخابات سیاست سے زیادہ اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ BRS کارگزار صدر نے کہا کہ ہندوستان میں بہت سے عظیم اور دانش مند رہنما ہیں، تاہم وہ بہتر معیشت اور آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنے پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، سال بھر میں انتخابات منعقد ہوتے ہیں، عوامی نمائندوں کی تمام تر توجہ انتخابات پر ہی مرکوز ہوتی ہے، تاہم دیگر ممالک کی طرح اگر ہندوستان میں بھی اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے گی تو ہندوستان ترقی کے معاملے میں پہلے مقام پر ہوگا۔ How the depreciation of these assets, these resources, the depletion of these resources, and how the utilization of these resources is intricately linked to ensuring long-term sustainable growth in line with the developmental aspirations of that particular nation. So, let me not confuse you, without giving you examples. I'll give you 2 examples. Back in 1987, China and India, exactly 35 years ago, 2 countries with similar size of human resources had the exact same size of GDP, 1987. But if you actually now move 35 years ahead and look at the current times and current date, China's economy is almost at $18 trillion, and we are languishing at $3.4 trillion. China's per capita is $13,000. Our per capita is $2,400. So what am I talking about here? What did China do that India didn't in the last 35 years? تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پیش نظر اسمبلی کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ گورنر تلنگانہ تمیلیسائی سندراراجن کی تقریر سے کل یعنی جمعہ کے روز اسمبلی کے بجٹ سیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ محکمہ ٹریفک کی جانب سے بھی اسمبلی کے آس پاس ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر ٹریفک پولیس نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 3 فروری سے بجٹ سیشن کے اختتام تک صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک یہ تحدیدات عائد رہیں گی۔ اسمبلی کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک کے بہاؤ میں خلل پڑ سکتا ہے، اس لیے عوام کو متبادل راستے اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلگو تلی، اقبال مینار، رویندر بھارتی، نیرنکاری بھون، ماساب ٹینک، نیو MLA کوارٹرز، موزم جاہی مارکیٹ، BRK بھون، آداش نگر، جوبلی ہلز چیک پوسٹ، ESI ہاسپٹل، CTU جنکشن اور سکندرآباد سمیت دیگر علاقوں میں ٹریفک خدمات متاثر رہنے کا امکان ہے۔ شہریان کو مقررہ مقامات کو
सफ़र करने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रवाना होने को भी कहा गया है और महकमा पुलिस ने आवाम से ताउन की ख्वाहिश भी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर को अवामी मसाइल जानने के लिए पदयात्रा करने का मशवरा दिया है और उन्हें तोहफे में जूते भेजे हैं। वाईएस शर्मिला ने प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा का जिले वरंगल के चिन्नारपेट मंडल से आज अहिया किया। क़ब्ल उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की कारकर्दगी पर जमकर तनकीदें की। कहा कि अगर केसीआर पदयात्रा करेंगे तो ही अवामी मसाइल सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि वो केसीआर को पैदल दौरा करने के लिए बतौर तोहफा जूते भेज रही हैं। वाईएसआरटीपी रहनुमा ने वज़ीर आला तेलंगाना को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीआरएस सरबराह ये साबित कर दें कि रियासत में कोई मसाइल नहीं है तो वो माफ़ी मांगकर अपने घर चले जाएंगी और अगर रियासत में मसाइल पाए जाते हैं तो केसीआर को इस्तीफा देना होगा और एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। शर्मिला ने मजीद कहा कि वो रियासती गवर्नर से मुलाकात करना चाहती थी, ताहम पदयात्रा के पेश नज़र वो गवर्नर से मुलाकात नहीं कर सकी। కేసీఆర్ గారికి మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయడానికి షూ బాక్స్ బూట్లు ఉన్నాయి, బిల్లు కూడా ఉంది. కేసీఆర్ గారు సైజ్ సరిపోకపోతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బిల్లు దీని లోపల పెట్టాల్సింది. సో కేసీఆర్ గారికి షూ బాక్స్ గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ మిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఒక్క రోజైనా వచ్చి నడవండి, ప్రజల సమస్యలు ఒక్క రోజైనా చూడండి. పిట్టల దొరలాగా ఒక టోపీ వేసుకొని ప్రైవేట్ విమానాలలో దేశాల బట్టి తిరగడం కాదు. మీ ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన మీ ప్రజల కోసం కూడా ఆలోచన చేయండి. ఒక్కసారైనా ఒక్క రోజైనా ప్రజా దర్బార్ ఉందా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఎంత వైభవంగా జరిగింది. సామాన్యుడు కూడా వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలిసే రోజులు కదా. ఇప్పుడు కనీసం నాయకులకైనా ఉద్యమకారులకైనా ఎవరికైనా అవైలబుల్గా ఉన్నాడా కేసీఆర్ గారు? ఒక్కరికి కూడా లేరు. అందుకే చెప్తున్నాం, కేసీఆర్ గారు ఒక్కరోజు ఈ బూట్లు వేసుకొని మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయండి. మీకు దమ్ముంటే, మీ ప్రజల ముందుకు మీరు వచ్చే దమ్ముంటే, మీ పాలన మీకు ఇది నమ్మకం ఉంటే కేసీఆర్ ఒక్క రోజైనా మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయాలని మళ్ళీ సవాలు విసురుతుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने 11 फरवरी को मुनक्किद होने वाली फार्मूला ई रेस के इंतजामात का जायजा लिया है। हैदराबाद शहर के इलाके नेकलेस रोड NTR रूट पर 11 और 12 फरवरी को रेस होने जा रही है। सीवी आनंद ने रेस के इनेकाद को कामयाब बनाने के मौसर इक़दामात करने को कहा है और इस ज़िम्न में की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि रियासती असम्बली का बजट इजलास कल से शुरू हो रहा है। नौ तामीर शुदा सेक्रेटरीट का इफ्तिताह भी इसी महीने में अमल में आ रहा है। CP हैदराबाद ने बताया है कि 3 बड़ी तकरीबात के पेश नज़र महकमा पुलिस ने बड़े पैमाने पर इक़दामात किए हैं। उनका कहना है कि रेस देखने के लिए 25,000 अफराद की आमद की तवक्को की जा रही है और हैदराबाद में पहली बार ई रेस मुनक्किद हो रही है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम को यकीनी बनाया जा रहा है। CP हैदराबाद ने बताया कि 5 फरवरी बरोज़ इतवार सड़क मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। 6 फरवरी को NTR रूट पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल रहेगी। ताहम 7 से 12 फरवरी तक NTR रूट मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए बंद रहेगी। मोटरसाइकिल सवारों को मेट्रो रेल के जरिए सफ़र करने और शहरियान हैदराबाद को इन मुकाबलों के कामयाब इनेकाद के लिए ताउन करने का मशवरा दिया गया है। పని కొనసాగిస్తారు. ఎందుకంటే అది కూడా 17వ తేదీ ఫిక్స్ అయి ఉంది కనుక ఆ పనులు ఎటువంటి ఆటంకం దానికి మేము కలగకుండా చూసుకుంటాం. ఈ ఫ్లైఓవర్ క్లోజ్డ్ ఉంటుంది. ఈ ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ మరియు తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ కూడా క్లోజ్డ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే గతసారి మేము చూసాము ఆ ఫ్లైఓవర్ ఓపెన్ ఉంటే పబ్లిక్ అందరూ అటువైపు వచ్చేసి వాహనాలు ఆపి పైనుంచి రేసింగ్ చూస్తున్నారు. సో అది కాకుండా మేము ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. వాడే అవసరం ఉంటే వ్యూ కట్టర్స్ పెట్టి ఆ ప్రెషర్ ఏదైతే ఎక్కువ వ్యూ కట్టర్స్ పెట్టి ఏది కింద కనబడకుండా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే అప్పుడు వాడుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ ప్రెషర్ బట్టి మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మేము ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ MD గారితో వెళ్ళి కలిసారు, మీటింగ్ పెట్టుకొని ఇటువైపు వచ్చే బస్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొద్దిగా తగ్గించుకొని సంఖ్యలో అంటే మినిమం సర్వీసెస్ ఉంటాయి. కంజెషన్ ఏదైతే రూట్స్ ఉన్నాయో కొద్దిగా తగ్గించుకొని నడపమని సూచించాము. వేరే రూట్స్లో వెళ్ళిపోవడానికి కూడా వారికి డైరెక్షన్స్.
సెక్రటరియట్ పనులు తప్పకుండా అదే క్రమంలో జరుగుతాయి. సెక్రటరియట్ సిబ్బంది మరియు వాహనాలు ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत ने तेलंगाना हुकूमत से साल 2018 के इंतखाबात से कबल अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। सैयद हामिद हुसैन चुतारी सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत पार्टी ने मीडिया से बात करते हुए तहरीक तेलंगाना के दौरान बीआरएस सरबरा के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए ऐलानात और वादों की याद दहानी करवाई और कहा कि तश्कील तेलंगाना और वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद केसीआर ने अपने वादों को फरामोश कर दिया है। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने के बारहा मुतालबात और दरख्वास्तों के बावजूद भी उन्होंने वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिया। हामिद हुसैन शुतारी ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मसला उठाया और कहा कि अक़लियतों को लोन फराहम करने के नाम पर लाखों रुपये कमाते हुए हुकूमत ने अवाम के साथ धोखा किया है। सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत पार्टी ने समाज के दीगर तबक़ात को तमाम तर सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ात मुहैया करवाने और अक़लियतों को इन सब से महरूम रखने पर सवाल उठाए हैं और अवाम बिलखुसूस नौजवानों को अपना हक़ हासिल करने की जद्दोजहद के लिए तैयार होने को कहा है। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन चुतारी सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के उन अफसाद से मुखातिब हूँ जो धोखा खाने के आदी हैं। केसीआर साहब 8 साल से बरसर इख्तिदार है और जो तहरीक तेलंगाना में उन्होंने हमसे वादा किया था, मुसलमानों से वादा किया था, हम उनके शाना बाशाना काम करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने वादे को कायम नहीं रहा। ना वो जो मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए हम उनसे कहे थे कि वक्त बोर्ड को आप जुडिशियल पावर दे दे, तो उन्होंने मुस्कुरा के नहीं बल्कि हिम्मत के साथ कहा कि मैं 4 महीने में देने वाला हूं। उन्होंने कोई जुडिशियल पावर नहीं दिया और उसके बाद उन लोगों के साथ हो गए जो तेलंगाना के मुखालिफ थे और उनको गोद में बिठाया और सबसे बड़ी उनकी गलती वो जिंदा रहने के लिए आवाम को जो है नुकसान पहुंचाते रहे। अब आज जो है अपना चोला बदले हैं और उसके बाद बीआरएस का जिक्र कर रहे हैं। आप बीआरएस से क्या करते हैं जबकि आवाम यहाँ मुतमईन नहीं है और हमारा जो मुतालबा था 12% क्या करें आप तो जो है 12% और बजाय उसके आप 3% कर दिए। अब माइनॉरिटी का जो है 7 साल से माइनॉरिटीज के लिए जो है आपको अमाउंट का जो डिक्लेयर करना था उधर आप जो 50 लाख करोड़ का ऐलान किया, फिर 20 करोड़ का ऐलान हुआ और उसके जवाब में जो लोग दरखास्तें दाखिल कर रहे हैं 2 लाख से 30,000 दरखास्तें, फी आदमी को 30,000 का खर्चा हुआ है, आपको जो पैसे नहीं दिए और अभी तक ये इत्तला है कि 1 रुपया आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं। और मौजूदा जो है माइनॉरिटीज के चेयरमैन है वो दिलासा दे रहे हैं कि अमाउंट आ जाएगी। ये दिलासे और ये उम्मीदें कब तक। मैं हैदराबाद के उन अवाम से जो हक है और वो नौजवान जो दूसरों की क़ियादत पे भरोसा कर रहे हैं वो छोड़िए, अल्लाह पे यकीन कीजिए और मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। यकीनन हम जो है जद्दोजहद करके अपना हक हासिल करेंगे। सरदारजी हासिल कर रहे हैं, रस्सी हासिल कर रहे हैं और मुसलमान क्यों नहीं हासिल कर रहे? और रोना ये है कि हमारी क़ियादत हमारा साथ नहीं दे रही। अरे क़ियादत तो जो अंधों की है, क़ियादत अंधों की क़ियादत है और बेवाओं की क़ियादत है। आप क्या समझ रहे हैं? क़ियादत पे आप जो है भरोसा मत कीजिए, बल्कि एक शेर सुनाता हूँ, यार अपना है तो अपनी माइनॉरिटीज के चेयरमैन पे भरोसा कीजिए, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे भरोसा कीजिए, बजाय इसके जो है आप जो अब बताइए लोग गरीब लोग लाइन में खड़े रह के 2,30,000 आप बैंक पेपर जारी कीजिए और कितने का लाख आपको आमदनी हो गई है, अभी आपकी तकसीम भी नहीं करे इतने रुपये वसूल के लिए। ये जो है धोखा है, फरेब है। आवाम को जो है इससे बढ़ के भी और कोई ऐसे खराब हालात पैदा नहीं होते हैं। तारीख का एक ज़मीन बाब है, आने वाली हुकूमतें बताएंगी और हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में इनके इस अमल के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि हम जालिमों को हमारे से मुकाबले में जो है नाकाम करा देंगे। खुदा
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शंकेश्वर नगर नाले के तरक्याती कामों की तफसीलात हासिल की हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट MLA ने EEDE और GHMC अहदेदारों से मुलाकात करते हुए मूसा नदी में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी का रुख मोड़ने के मुजवज़ा प्रोजेक्ट और शंकेश्वर नगर नाले के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्हें मुख्तलिफ हिदायतें भी दी हैं। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ ने TNGOs के दफ्तर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए TNGOs दफ्तर में कंटिवेंगो प्रोग्राम का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर सियाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ के हाथों आगाज अमल में आया। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SN हुसैनी मुजीब ने सरकारी मुलाजिमीन के आंखों के मुआयने करवाने के लिए दफ्तर में कंटिवेंगो प्रोग्राम मुनक्किद करने पर वज़ीर सेहत हरीश राव व दीगर से इजहार तशक्कुर किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारम की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों ऑल इंडिया बेस्ट सीनियर विंग आर्मी अवार्ड हासिल करने वाली तालिबा के लिए एजाज़ी तकरीब मुनक्किद की गई। प्रेम कृतिका दिल्ली पब्लिक स्कूल की तालिबा हैं। उसने यौम जमहूरिया के मौके पर NCC जुमरे के तहत दिल्ली में परेड में हिस्सा लिया था। कृतिका को वज़ीर आज़म हिंद के हाथों ऑल इंडिया बेस्ट सीनियर विंग आर्मी अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में कृतिका के एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम करते हुए चेयरमैन कोमरैया ने तालिबा को मुबारकबाद पेश की है और मुस्तकबिल में कृतिका की तालीम के लिए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान भी किया है। జై హింద్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు ప్రేమ్ కృతిక. నేను ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ నాచారంలో చదువుతున్నాను. ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ 4th తెలంగాణ బెటాలియన్ NCC. ఐఎమ్ ప్రెజెంట్లీ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ మై NCC B సర్టిఫికేట్. నేను రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్ 2020 ఇంకా రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్ 2023లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. రీసెంట్గా 2023లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆల్ ఇండియా బెస్ట్ కెడెట్ సీనియర్ వింగ్ ఆర్మీ అవార్డు వచ్చింది. దానికోసం ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి నాకు బేటన్ ఇంకా మెడల్ ఇచ్చారు. This is my father, his name is Prem Kiran, and this is my mother, Vidya Mandakin. GD मेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई है। चोरों ने मुखाफिल मकान के ताले तोड़कर 10 तोले सोना और 7 लाख रुपये चोरी कर लिए। ज़राए ने बताया कि GD मेटला पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके चिंतल शिवानगर में एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम मनोहर के मकान में चोरी का वाक़या पेश आया है। मनोहर का कहना है कि वो अपने अफराद खानदान के साथ बहादुरपल्ली गए हुए थे। चोरों ने मुखाफिल मकान को निशाना बनाते हुए घर से 10 तोले सोना और 10 लाख रुपये नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। मुतासरा शख्स ने घर लौटने पर साजो सामान बिखरा देखकर GD मेटला पुलिस स्टेशन को इतला दी। पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया है और चोरों की तलाश में मसरूफ हो चुकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।